Good morning once again, and we are going to cover the third part of the chapter, separation of insoluble solids from liquid. Earlier we studied different techniques of separation in which we will separate solid from solid, right? In which we studied hand picking, threshing, winnowing, right, and sieving. But here in this case we have insoluble solid, means you are going to separate insoluble solid from the liquid. Okay, that solid which will not disappear in water. If you will try to dissolve it, it will not dissolve. Okay, so for this we will study first sedimentation, decantation, third is filtration, right, and fourth is loading. Okay, so let us understand what is sedimentation actually. Sedimentation is actually, this is based on the principle of different densities of the two components. First of all, insoluble solid, and another thing, different density. Okay, densities of the components. Suppose you have taken, you have a muddy water, right? Or you have taken a mixture of soil in water. Okay, soil and water. So soil is much heavier than water. Okay, and after some time it will settle down. Suppose this is a beaker, right? I will explain you with the help of an activity also. This is a beaker and you added what? You have water and what? Soil. After some time, what you will observe? That the soil particles being heavier, they will settle down. Okay, and water will come at the top. वाटर की ऊपर लेयर आ जाएगी ऐसे, और नीचे सारे सॉइल के सेडिमेंट, इसे हम बोलेंगे सेडिमेंट, ओके, विच इज मोर हैवियर. तो ये जो है नीचे की तरफ बैठ जाएगा. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन. बट अगर आप इस सेडिमेंटेशन में, अब ऐसे पानी ऊपर ही है ना, आप ये क्यों कर रहे हैं मेथड? ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज यू नीड समवॉट प्योर वाटर विच इज फ्री फ्रॉम सॉइल और मड. तो इफ यू विल pour the liquid into another beaker in order to obtain clear liquid, so that no sediment should enter in another beaker, this process will be known as what? जिसमें आप clear water ऐड कर रहे हैं, सिर्फ clear water आप pour करना चाह रहे हैं, okay, by tilting the beaker, okay, tilt करके. तो इस मेथड को हम बोलेंगे क्या? Decantation. Okay. Filtration. Filtration is what actually? It is also based on the same principle, but here we use a filter paper, okay, in which the pore size of the filter paper is very, very small, and it usually don't allow the mud or soil to pass through it. But you know, in our homes we don't have filter paper. We can also use fabric, cotton fabric also. We know cotton is a good absorbent. It absorbs water, yeah? So it will allow water to pass through it, and I think that the soil particle will be left on the surface of the fabric. Okay, तो filtration में हम क्या करते हैं, ये आपको स्कूल में बहुत अच्छे से दिखा भी दिया जाएगा. फनल लिया जाता है, दिस इज एक्चुअली द फनल, और उसमें फिल्टर पेपर ऐसे सर्कुलर शेप में देखेंगे. दिस इज अ फनल चिल्ड्रन. ओके, राइट नाउ आई डोंट हैव अ फिल्टर पेपर, तो ऐसे कर लेते हैं, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में होता है फिल्टर पेपर. ओके, सो हाउ कैन यू यूज फिल्टर पेपर फॉर फिल्ट्रेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज मेक अ वन फोल्ड. ओके, ये सेमी सर्कल से हो गया. उसके बाद एक और फोल्ड, ऑलराइट, ओके, वन मोर फोल्ड. ऐसा आपको ये इस तरह का दिख जाएगा. नाउ ओपन फ्रॉम वन साइड. ओके, ऐसे आपने इसको ओपन कर लिया, राइट, और ये दिख रहा है आपको, इस तरह से कोन टाइप का बन जाएगा. और उसमें फिर आप ये
फिल्टर पेपर ऐसे लगा लीजिए, तो फिल्ट्रेशन विल बी डन। ओके, जब हम फिल्टर करते हैं चिल्ड्रन, तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, आप जब फिल्टर करेंगे, ओके, यू हैव अ मडी वाटर और सॉइल एंड वाटर, ओके, और आप जब फिल्टर करेंगे तो क्या होगा, क्लियर लिक्विड वाटर विल पास थ्रू, यहाँ पे आपको क्लियर वाटर मिल जाएगा। ओके, और जो आपने जो फोल्ड उसका बनाया था, कोन बनाया था फिल्टर पेपर का, उसमें आपको क्या मिल जाएगा, सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड। व्हेन यू विल ओपन द फिल्टर पेपर, okay, you will obtain what, insoluble solid. That insoluble solid is known as what, residue. ये क्या होगा, residue. And the clear liquid, okay, which passes through filter paper is known as filtrate. इसको हम क्या बोलते हैं, filtrate. So this is actually, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि which one is a better method, sedimentation and decantation together or filtration, so the answer will be what, filtration. okay, लेकिन फिल्ट्रेशन में हम सारी चीज़ें, आप जो है ज़रूरी नहीं है हर चीज़ फिल्टर पेपर से ही फिल्टर करें। ओके, हम फिल्ट्रेशन में आपने देखा होगा टी स्ट्रेनर जो होता है, जो छलनी जिससे आप जब चाय बनाते हैं तो टी लीव्स गेट सेपरेटेड, ओके, दे रिमेन ऑन स्ट्रेनर। ओके, जो छलनी होती है उस पर चाय की पत्ती रह जाती है, तो इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन पोर साइज। ओके, पोर साइज, जो होल्स होते हैं छोटे छोटे, उसका क्या साइज है, अगर वो साइज छोटा है, ओके, इन कंपैरिजन टू इनसॉल्युबल सॉलिड, तब तो वो क्या कर लेगा, सेपरेट कर देगा, और अगर वो बड़ा है साइज तो वो सेपरेट नहीं कर पाएगा। जैसे आपने फिल्ट्रेशन में आप देखेंगे, अगर आप इसी फिल्ट्रेशन को आप अलग अलग तरह की सीड्स आप देख लीजिए, तो उसमें किसी में आप सैंड आप सॉल्ट देखेंगे इजीली, उसमें कुछ भी नहीं बचेगा अगर आप उसके थ्रू पास कराएंगे स्ट्रेनर से। ओके, और टी लीव्स ऑन द सेम साइड, टी लीव्स जो होती हैं वो रुक जाती हैं बिकॉज दे आर बिगर इन साइज इन कंपेरिजन टू द पोर साइज ऑफ द स्ट्रेनर। तो आप प्रिंसिपल समझे बिहाइंड फिल्ट्रेशन, क्या वे है, किस वजह से फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो one more time that I am revising it, that the clear liquid that is obtained during filtration is what, is known as filtrate. Insoluble solid that is left on filter paper is known as residue. एक लोडिंग बहुत जल्दी से हम कर लेते हैं, आई थिंक बुक में नहीं है, फिर भी हम जल्दी से कर लेते हैं इसको, बहुत आसान होता है। लोडिंग में हम क्या करते हैं, मडी वाटर है सपोज करके, है ना, मड और वाटर मिक्स है, एंड यू वांट टू क्लीन दिस वाटर, यू वांट टू क्विकन द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। ये जो आपने पढ़ा था, सेडिमेंटेशन में टाइम लगता है ना, फॉरन सेडिमेंटेशन नहीं हो जाता, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। तो सेडिमेंटेशन को फास्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, एलम फिटकरी होती है उसको हम हैंग कर देते हैं। ओके, और जैसे हम हैंग करते हैं सेडिमेंटेशन फास्ट हो जाता है, और आप देखेंगे बहुत जल्दी क्या होगा, हैवियर पार्टिकल्स होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे और क्लियर लिक्विड आपको ऊपर दिख जाएगा। It is also one of the method which is used for separating insoluble solids from liquid. ठीक है, ऐसी सेडिमेंटेशन आपने देखा होगा कहाँ हम करते हैं, हम घर में ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, बट हमें टर्म्स नहीं पता होते कि व्हाट वी आर डूइंग। सेडिमेंटेशन आपने देखा होगा, सपोज आप दाल बनाने से पहले या राइस बनाने से पहले वाटर में हम थोड़ी देर के लिए उसको रखते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं। द पर्पज ऑफ एडिंग वाटर इज व्हाट, why do we add water to rice or dal, so that dust and all such type of impurities which are lighter, they are removed with the help of water में वो ऊपर आ जाती हैं वाटर के साथ, एंड ज़रा सा आप टिल्ट करेंगे यानी आप डिकेंट कर रहे हैं, कीपिंग इन माइंड कि जो राइस है और दाल है वो गिर ना जाए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग सेडिमेंटेशन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन डिकेंटेशन। ऐसी फिल्ट्रेशन आप एक तरह से जब चाय बनाते हैं तो आप फिल्ट्रेशन ही करते हैं। ओके, इसी तरह से जो जूस आप पीते हैं वो भी आप फिल्टर्ड जूसेस ही पीते हैं, उसमें आई थिंक नोबडी विल लाइक टू हैव सीड्स अलोंग विद द जूस, उसको भी हम स्ट्रेन करते हैं, है ना, पल्प वल्प कुछ भी अगर बच जाता है उसको भी हम स्ट्रेन कर देते हैं इन ऑर्डर टू हैव क्लियर जूस। तो उस टाइम में हम क्या करते हैं, वी यूज टू डू फिल्ट्रेशन।
So I will explain you in the next video that these techniques also. Okay.